Welcome to the Mluka Academy. Myself Anil Kumar Skija. So today I will deliver the lecture on trigonometry for class 10th. So this is class 10th. Topic is trigonometry. So we have started with part stating with the different t ratios, then the t ratios of complementary angles, then we come with the trigonometric identities. So today part which we have to discuss with the trigonometric identities which we have to prove. So for this we have done certain square identities, then the t ratios from one form to another form. So using those formulas we can prove certain equations, or we can say identities. So the first question in this is to prove the following identity. To prove identity sin square sin theta plus cosecant theta whole square plus cosecant cos theta secant theta whole square, this is equal to 7 plus tan square theta plus cot square theta. So first of all we must know what a identity is. So identity is an equation which is given, so that is independent of the angle which is given to us, that is independent of angle theta. So theta can be anything, so that is the universal equation. So this we have to prove for any value of theta. So we can take either left hand side to get right hand side, or right hand side to get left hand side, or we can take both the sides to meet at some intermediate point. So here we will take left hand side. So we have left hand side is equal to sin theta cosecant theta whole square cos theta secant theta whole square. So here what we can do, we can apply the formula of square, that is a plus b whole square, that is given by a square plus b square plus 2ab. So likewise we have got, first we will get sin square theta cosecant square theta plus 2 sin theta cosecant theta. So उसी तरह से सेकंड ब्रैकेट पे हम फॉर्मूला लगाते हैं cos square theta secant square theta plus 2 cos theta into secant theta. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे? एक तो ये हमें मालूम है साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होता है, साइन 1 अपॉन कोसेकेंट है या कोसेकेंट 1 अपॉन साइन है. सो ये दोनों रिजल्ट करते हैं 1 में. सो दिस विल बी कैंसल्ड, कॉस और सेकेंड भी कैंसिल हो जाएंगे. सो ये इसमें क्या आ जाएगा, हमारे 2 आ जाएगा. 2 और 2 कितना हो गया, 4. सो फ्रॉम हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 बच जाएंगे, और इसको हम ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1. ये हमारा 1 के इक्वल होता है. सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1. अब हमारा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह सेकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो अब ये क्या बन गया, 4 5 6 और 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सो ये किसके बराबर है, ये राइट हैंड साइड के बराबर है. यही हमने शो करना था, हैंस प्रूव्ड. सो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है जो हमने शो करना है, इसमें साइन और सीकेंट का स्क्वायर कॉस और कोसेकेंट का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस
कॉस थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर। सो ये हमने शो करना है। सो वेरी मच इजी, इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रोसेस, सेम लाइंस। सो यू कैन एक्सपेंड दिस यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड। वी हैव साइन स्क्वायर थीटा सेकेंट स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा सेकेंट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos theta into cosecant theta. So again we can have sin square theta plus cos square theta. It will be equal to 1. Then we have got secant square theta and cosecant square theta. Plus 2 sin theta, and this will be upon cos theta, and this is 2 cos theta upon sin theta. So this will become 1 plus secant square theta cosecant square theta plus 2 common, and we have got sin theta cos theta, this will be sin square theta plus cos square theta. So this will be your 1 plus secant square theta plus cosecant square theta plus 2 upon sin theta cos theta. So this can be taken in the upper side. So this will be your 1 plus secant theta and okay 1 plus 1 upon cos square theta 1 upon sin square theta 2, this will become secant theta cosecant theta. Now this will be 1 plus, this will be cos square theta into sin square theta, and this will come here sin square theta plus cos square theta plus 2 secant theta into cosecant theta. This will be 1 plus 1 upon cos square theta sin square theta plus 2 secant theta cosecant theta, and this can be taken as 1 plus, this will become secant theta into cosecant theta whole square plus 2 secant theta cosecant theta. So this has become 1 square a square plus b square plus 2ab. This turns out to be same as your RHS, that is 1 plus secant theta cosecant theta whole square. So this is equal to right hand side. So this is what we want to show. So then we move to the next part. So first of all we rub this part. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें secant theta raised to power 4 minus secant square theta. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, secant theta raised to power 4 minus sin secant square theta. This is equal to tangent 4 and tangent square theta.
सो ये हम शो कर सकते हैं किसी भी साइड से, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड। सो वी इससे हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें कॉमन है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें सीकेंट स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब हम एक तो tan में आ गया, लेकिन दूसरा भी tan में चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, दिस कैन बी कन्वर्टेड टू tan बाय यूजिंग सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा रेज़ टू पावर 4। So this is equal to right hand side. So this will be your result. Then next question is, fourth question है इसमें, इसी के बेसिस पे ये है क्वेश्चन 4th। ये क्या प्रूव करना है, cos a रेज़ टू पावर 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन a रेज़ टू पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली इसको हमने साइन और कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में या साइन को कॉस में। सो इसमें भी हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, कॉस a रेज़ टू पावर 4 है और कॉस स्क्वायर a, तो इसमें कॉस स्क्वायर a हम कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर a -1। तो इसको माइनस को भी बाहर ले लो, माइनस कॉस स्क्वायर a, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया, प्लस वाला माइनस में चेंज हो गया। सो माइनस कॉस स्क्वायर a और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a। अब हमें रिजल्ट किस में चाहिए, साइन स्क्वायर में चाहिए। सो एक तो हमारे पास साइन स्क्वायर आ गया, अब इस कॉस को भी हम चेंज कर सकते हैं, कॉस को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये साइन स्क्वायर a है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर a, ये तो बाहर वाला मैंने लिख लिया, अब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a -1, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा साइन a रेज़ टू पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर a। सो ये हमने आइडेंटिटी प्रूव कर दी बहुत इजीली। देन 5th क्वेश्चन है इसी में, कोट 4a cot a रेज़ टू पावर 4 -1, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू cot कोसेकेंट a रेज़ टू पावर 4 -2 कोसेकेंट स्क्वायर a। अब कोसेकेंट को हमने चेंज करना है, कॉट को चेंज करना है कोसेकेंट में। सो वेरी इजी। सो पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हमें, कॉट a रेज़ टू पावर 4, इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर -1। अब कॉट स्क्वायर a के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोसेकेंट स्क्वायर a -1। सो दिस विल बी योर, इसके लिए हम लिखते हैं कोसेकेंट स्क्वायर a -1, और स्क्वायर जो वैसे आ जाएगा -1 भी वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a - b होल स्क्वायर, तो क्या होता है a - b होल स्क्वायर, दैट विल बी योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सो ये हो जाएगा हमारा कोसेकेंट a रेज़ टू पावर 4 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a +1 -1। So this will be cosecant a raised to power 4 minus 2 cosecant square a +1 -1, ये कैंसिल हो गया। सो ये आ जाएगा cosecant a raised to power 4 -2 cosecant square a। ये हमारी राइट हैंड साइड भी है, यही हमने शो करना था इसमें।
So we continue with the same, but before that we have to rub this part. Then next is sixth question is, so what we need to show here, sine a raised to power 6, question 6, and power is also 6, sine a raised to power 6 plus cos a raised to power 6, which is equal to 1 minus 3 sine square a cos square a. So very easy, simple identity we have to use, algebraic formula and identity. So first of all, what we will do, we will convert this sine a raised to power 6 as sine square a, and what will be power for this? Cube. 2 and 3 multiplied. If multiplied, that will get you the 6. So powers will be multiplied, and similarly cos square a raised to power 3. Now we must know the formula about a cube plus b cube. So we can write the formula for a cube plus b cube will be equal to, or we can say this is equal to a plus b cube. A plus b cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Now if you want to find the value of a plus b, so what will be a cube plus b cube will be equal to, this will be transferred to this point, a plus b whole cube minus 3ab a plus b. Now what we will do, we will put for a sine square a and for b cos square a. So this will be sine square a cube cos square a cube is equal to, so this becomes your a, this becomes your b. Now this will be a plus b, that is sine square a plus cos square a cube minus 3 sine square a cos square a, and this will be a plus b sine square a plus cos square a. So this turns out to be 1 minus 3 sine square a cos square a into 1. So this will be 1 minus 3 sine square a cos square a, this is equal to right hand side. So यही इसमें हमने शो करना था, hence proof. Then seventh question में क्या है? Question 7, sine square a upon cos square a cos square a plus cos square a upon sine square a किसके इक्वल है ये? 1 upon sine square a cos square a minus 2. सो बहुत अच्छा है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो क्या आएगा इसमें? एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है ऑब्वियसली. एलसीएम आ जाएगा cos square a sin square a, ये अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? sin a रेज टू पावर 4 प्लस cos a रेज टू पावर 4. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर अपॉन
साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था टू सिंप्लीफाई करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमने वैल्यू उसकी निकालनी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यही हमने ऊपर करना है, ए के लिए साइन स्क्वायर आ जाएगा और बी के लिए कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारा बन जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इसको फिर से करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब a माइनस बी अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। सो वही करते हैं, जो डिनोमिनेटर को एलसीएम को हमने अलग अलग डिनोमिनेटर के में लिख दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये कट गया, ये कट गया, क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2। सो यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट है, उसके लिए पहले हम इसको रब करेंगे फिर कर सकते हैं इसमें। देन नेक्स्ट इज, इसी में है हमारा 8th क्वेश्चन। ये हमने प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसको क्या शो करना है हमने, साइन ए प्लस कॉस ए। ये शो करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं इसमें, ये तो हमारा साइन स्क्वायर में है, ये कॉस में है, ये साइन है, साइन और कॉस में, इसको भी साइन और कॉस में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज कॉस ए, नीचे भी कॉस ए 1 माइनस टेंजेंट ए। तो इसमें हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कॉस ए। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिखना है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसको मल्टीप्लाई किया कॉस ए आ जाएगा माइनस,
कॉस ए इंटू टेंजेंट ए, जब कॉस और टेंजेंट को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अपॉन कॉस हो जाएगा इंटू कॉस, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से साइन रह जाएगा, सिर्फ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। सो डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस का हो गया और साइन ए माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम तो सेम ही है, डिनोमिनेटर दोनों पास सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। तो इसमें ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये कॉस ए प्लस साइन। तो यही हमने शो करना था, साइन ए प्लस कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। So you can get this as a result. Then next is, इसी में आगे है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है, वन प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या है, ऊपर ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में सेम हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसके पहले फॉर्मूले लिख सकते हैं, फिर उसको हम लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस हुआ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पे हमारा प्लस वाला लगेगा, यहाँ पे माइनस वाला लगेगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, दिस विल बी 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 2 साइन थीटा आ गया प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो ये तो हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये आया हमारा 1 माइनस साइन होल थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ऑपरेट करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस 1 और 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें चाहिए क्या, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया हमारा नीचे, इसको चेंज कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है हमारे 1 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सेम ब्रैकेट में कर सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हमारा प्रूफ हो गया जो इसमें करना चाहते थे हम। सो इसको हम चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया यूजिंग द सम फॉर्मूलाज बेस्ड अपॉन योर अलजेब्रिक फॉर्मूलाज।
सो वो कौन कौन से थे? एक तो ये थे हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, देन वी हैव a क्यूब a प्लस बी क्यूब, क्या होता है a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, और a माइनस बी क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। सो ये हमने नहीं यूज़ किया, इसी में किया है। एक 6th पावर का था, वो भी हमारा क्यूब में ही आ गया था। सो ये हमारा आज का पार्ट था, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एलिमिनेशन और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो आई थिंक यू मस्ट बी फॉलोइंग ऑल द लेक्चर्स and you must be paying the concentration upon these lectures. So just listen these lectures carefully with concentration. In case of any problem, just contact us and subscribe the channel to get the further lectures. So thank you very much.